جب دل سے شکرگزاری ہوتی ہے اس بات کو یاد رکھیں، یہ ایک بلینک چیک ہوتا ہے، بلینک چیک ہوتا ہے جب شکرگزاری کرتے ہیں۔ جب خدا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ دل سے مجھے یاد کر رہا ہے، تو خدا سلیمان کی طرح اس سے کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اے خالی چاکی پر لا جو کچھ پڑھنا ہے، عقل پر لے، وزڈم پر لے، کچھ بھی پر لے، خدا خالی چیک دیتا ہے۔ لیکن جو دل سے کرتے ہیں، اسے آپ نے جو کچھ کرنا ہے دل سے کرنا ہے، میرے کہنے سے نہیں، ساتھیوں کے کہنے سے نہیں، بائی ہارٹ اپنے خدا کی مہربانی کو یاد کرنا ہے۔ شکرگزاری آپ کو پریزنس آف گاڈ میں، خدا کی حضوری میں لے جاتی ہے۔ یہ خدا کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ خدا فوراً ہی جواب دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ انہوں نے شکرگزاری کی قربانی کی، خدا فوراً ہی خدا اسے برکت دیتا ہے۔ اور بہت سارے، داؤد، سلیمان، بہت سارے لوگ جنہوں نے شکرگزاری کی، باپ ابراہیم نے شکرگزاری کی، خدا فوراً ہی اس کے ساتھ بولنا۔ جب آپ شکرگزاری کرتے ہیں خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے۔ لسن، خدا آپ سے بھی آج بولے گا۔ زبور 137 بلکہ زبور 126 سے لے کر 134 تک تقریباً ان کو زیارت کے گیت کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ سال میں 3 عیدیں ہوتی تھیں، تو ان کو یہ حکم تھا کہ آپ نے یروشلم میں جانا ہے اور وہاں پر یہ عیدیں منانی ہیں۔ تو جب یہ یروشلم میں آتے تو جتھوں کی صورت میں، ٹولوں کی صورت میں، تو یہ زبور گاتے، خدا کی حمد کرتے اور خدا کی تعریف کرتے تھے۔ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھی جائے تو یہ 3 بار اسیری میں گئے اپنے نافرمانی اور باغیانہ سبت کی وجہ سے، اور پھر یہ 3-4 دفعہ مختلف پارٹس میں یہ واپس اپنے ملک کو یہ آئے، نہ تو کٹھے گئے تو نہ یہ کٹھے واپس آئے۔ اور جب ہم نہمیہ کا، عزرا کا، دانیل، سدرک، مسک، ابدنجو اور بھی یہ سارے اسیری کے دوران یہ جو لوگ تھے جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ بابل کی حکومت میں اسیری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی بہت زیادہ تلخ یادیں تھیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ ہم بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کر روئے۔ جب اس ملک میں جس میں یہ قیدی تھے، جس میں یہ اسیر تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم بابل کی ندیوں کے پاس، یعنی کہ انہیں اپنا ملک یاد آتا، انہیں ہیکل یاد آتی، انہیں اپنے کھیت یاد آتے، انہیں اپنے گھر یاد آتے، انہیں وہ کہن یاد آتے، قربانیاں یاد آتی، کیسے ہم ٹولے بنا کر، جتھے بنا کر خدا کے گھر میں جاتے تھے۔ وہ ساری چیزیں یاد کرتے کہ کیسے خدا ہمارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، کیسے ہمارے باپ دادا کے لیے خدا نے بحر کلثم میں 2 حصے کیے، کیسے ابر کی صورت میں، آگ کی صورت میں خدا ان کے ساتھ تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ یاد کرتے، اپنی کھیتوں کو یاد کرتے، اپنی فصلوں کو یاد کرتے، اپنے جانوروں کو یاد کرتے، اپنے وسائل کو یاد کرتے، اور پھر لکھا ہے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس، صرف ان کے پاس آنسو ہوتے تھے۔
आंसू के सिवा कुछ नहीं था। आज जो मेरा मजमून है बीज की कुदरत, और वो बीज जो आंसुओं के साथ बोया जाता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना त्यामी रो निकल आंदा गली डो मिशन, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये खुदा की कौम है, खुदा के लोग कह रहे हैं कि जब हम बाबल की नदियों के पास बैठकर रोए, ये याद कर रहे थे खुदा कितना अच्छा वक्त था, कैसे हम सारा खानदान बैठकर एक टेबल पर खाना खाते थे, और कहां पर हम गुलामी में आगे हैं, मुश्किल में आगे हैं, मुसीबत में आगे हैं। याद करते उस अच्छे वक्त को जो उन्होंने बनी इस्राएल के अंदर गुजारा था। फिर रोते हैं और वो जो उनके आंसू निकलते हैं, वो आंसू कभी उनके कपड़ों पर गिरते और कभी वो आंसू जमीन पर गिरते। वो बीज की सूरत में वो आंसू उनके गिरते हैं। जो बीज आंसू के साथ, जो बीज किसी भी सूरत में बोया जाता है, एक वक्त आता है कि मेरे अजीजों उसका ये फल आता है। वहां पर ये वैसी इबादत नहीं कर सकते हैं, ना वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि ये असीरी की हालत में है। इंतहाई दुख है, इंतहाई खरब है। और फिर उल्टा बाबल के लोग इन्हें कहते हमें कोई गीत सुनाएं शुक्रगुजारी का, जो गीत अब यरूशलेम में गाते थे वो हमें सुनाएं। बनी इस्राएल ने क्या किया था, इन्होंने अपने, लिखा है कि इन्होंने अपने साज दरख्तों पर टांग दिए थे, बैत के दरख्तों पर अपने गिटारें, अपने बाजे, अपने हारमोनियम, अपने तबले अलमारी में रख दिए थे। खुशी इनसे चली गई थी, शादबानी इनसे चली गई थी, उनके चेहरों पर रौनक नहीं थी, उदासी थी, क्योंकि याद आता था कि वो अच्छा वक्त कैसे हम इकट्ठे थे, कैसे वो सारे चीजें, वो इख्तियार, वो बरकतें कैसे थी, याद करते हैं। और फिर और कुछ नहीं तो फिर आंसुओं का बीज खुदा की हजूरी में रोते हैं। फिर ये रोते हैं और कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं, बस अच्छा वक्त याद कर रहे हैं। और जब अच्छे वक्त को याद करते हैं और फिर उन्हें लोग कहते गाएं, सुनाएं, आप तो खुदा की इबादत गा कर सकते थे, आप तो बड़े बयान बाजे के साथ खुदा की परस्तिश करते थे। आपके तो बादशाह दाऊद ने कितने साज बनाए थे, वो किधर है साज, वो किधर है जबूर, वो किधर है मज़ामीन, वो किधर है सारे। आप क्यों नहीं गाते हैं? निकालें अपने साजों को, गाएं, यहां पर भी हमें भी सुनाएं। लेकिन इनको ऐसे लगता था जैसे कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। ये ऐसे महसूस करते थे कि जैसे बाबल के लोग हमारे जख्मों पर, अगर जख्म हो उस पर नमक छिड़का जाए तो दर्द तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये खुश नहीं थे, ये गुलामी में थे। और वो कैसे गाएं? शुक्रगुजारी तो उस वक्त शायद ज्यादा होती है जब वाकई ही खुदा ने जवाब दिए हों। वैसे तो हर तरह के हालात में करने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब दुखों में साल गुजारा हो, तकलीफों में साल गुजारे हों, गुर्बत में, बीमारी में, कोरोना में साल गुजारे हों, तो शुक्रगुजारी कैसे निकले? जब आपके कानों में बालियां जो गुलामों को पहनाते हैं वो डाली हों, या आपके पांव जकड़े हुए हों, आप आजादी से कुछ कर ना सकते हो, तो कैसे खुदा की शुक्रगुजारी करें? ये हाल बनी इस्राएल कौम का था, और वो कहते हैं हम गाएं और सुनाएं और बजाएं, लेकिन उन्होंने अपने साजों को बिल्कुल अलहदा कर दिया था। गा नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी वजह यह थी इनके बच्चों को कत्ल किया गया, इनकी औरतों को बेहुरमत किया गया, सिदकिय्याह बादशाह के बच्चों को कत्ल किया गया, हैकल को उजाड़ा गया, उसके शहर को उजाड़ा गया, कुर्बानियां मकूफ हो गई हैं, इबादत मकूफ हो गई है, शहर उजड़ गया, बनी इस्राएल उजड़ गया, तबाही है। कैसे ये कायन को याद आते थे कि हमारे बच्चे कत्ल हो गए,
हमारे खेत उजड़ गए हैं, हमारे कुएं पत्थरों से पार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक काम करते थे, वो दुआ करते और आंसुओं का बीज बोते थे। वो दुआ करते और आंसुओं का बीज बोते थे। ये आंसू बड़ी कुदरत रखते हैं, ये आंसू बड़े पावरफुल होते हैं, ये जोक नहीं है, बाइबल मुकद्दस इससे भरी हुई है। आंसू उस वक्त निकलते हैं जब ज्यादा खुश होते हैं या जब ज्यादा कोई गरीबी मर जाता है, उस वक्त आंसू निकलते हैं। जब आप खुदा की प्रेजेंस में होते हैं, उस वक्त आप अपना दिल हन्ना की तरह खोलते और आंसू निकलते हैं। बनी इसराइल के भी बस आंसू निकलते थे, कपड़े तार हो जाते थे, जमीन तार हो जाती थी और याद करते रहते थे, पिछले वक्त को याद करते थे। लेकिन वो बीज बोने से, जो आंसुओं का बीज है, वो बीज बोने से बाज नहीं आए। एक रोना ही तो उनके पास रह गया था, लेकिन वो रो लेते थे। और फिर एक दिन बाबल की हुकूमत का एक ही दिन में तख्ता उल्ट गया, रातों रात तख्ता उल्ट गया। जब हैकल के बर्तनों को उन्होंने गलत यूज किया, उसी रात खुदा ने जजमेंट की। अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया पर होल्ड करता है, लेकिन एक ही रात में उसका तख्ता उल्ट जाए। उस वक्त बाबल की हुकूमत अमेरिका थी, पूरी जमीन पर वो हुकूमत करते थे, लेकिन एक ही रात में उनके आंसुओं का जवाब आ गया। खुदा ने आंसुओं का जवाब दे दिया। नामुमकिन को खुदा ने मुमकिन कर दिया। जो बीज उन्होंने बोया था उस जमीन पर, बाबल के सरजमीन पर, उस बीज का उन्होंने नतीजा देखा कि वो हुकूमत जो टल नहीं सकती थी, जो बदल नहीं सकती थी, एक ही नाइट में खुदा ने बादशाह खोरस के वसीला से उनका तख्ता उल्ट दिया। खुदा आंसुओं की कदर करता है। वो बीज जो आंसुओं की सूरत में और पैसे की सूरत में और दुआ की सूरत में खुदा की हजूरी में बोया जाता है, वो हमेशा फल लाता है। बीज रुपए पैसे का हो, बीज ज़बूर और गीतों का हो, बीज आंसुओं का हो, लेकिन इस बात को याद रखें कि ये हमेशा हमारे लिए बरकत और रहाई लेकर आते हैं। खोरस ने हुक्म जारी कर दिया कि इनको छोड़ दिया जाए और ये जाएं और अपने मुल्क में हैकल बनाएं, दीवारें बनाएं, जो कुछ मर्जी करें। उनकी आजादी का परवाना जारी हो गया। हमें याद करना चाहिए, ये भी बाबल की नदियों के पास बैठकर याद करते थे। क्या आपने कभी याद किया कि किस कदर गुनाह में धन से हुए थे, किस कदर बुराई में धन से हुए थे, किस कदर गुर्बत में धन से हुए थे, किस कदर लानतों में धन से हुए थे, किस वक्त हम 10 दोस्तों में धन से हुए थे, उनके साथ मिले हुए थे, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें अपने बेटे के वसीला से रहाई बख्शी है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमें गुनाहों से निजात बख्शी है। यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं, अपना खून बहाकर उसने हमें निजात दी है, उसने हमें रहाई दी है, उसने हमें छुटकारा दी है। हमेशा शुक्रगुजारी किया करें कि हम कहां पर थे। कई लोग थे बुत परस्त थे, कईयों के माँ बाप दादा दादी दिए जलाते थे, मज़ारों पर कब्रों पर जाते थे, धागे काले बांधते थे, दम कराते थे, बहुत कुछ कराते थे। कैसे हम यीशु के खून में छुप गए हैं, कैसे यीशु ने अपना खून दे दिया है। आज उसके खून के एक कतरे से हम पाक और साफ हो जाते हैं। हमारे दिलों से शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए, क्योंकि यीशु का खून हमें पाक और साफ करता है। बाज़ औक़ात हम शुक्रगुजारी इसलिए नहीं कर पाते हैं, हम याद नहीं करते हैं। बनी इसराइल के लोग वो अच्छा वक्त याद कर रहे थे कि कैसे डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती है, खुदा ने मां बना दिया।
یاد کرنا چاہیے نا کہ ڈاکٹر کیا کہتے تھے کہ تو باپ نہیں بن سکتا ہے تو ماں نہیں بن سکتی ہے. خدا نے ماں بھی بنا دیا, خدا نے باپ بھی بنا دیا. کیسے حالات لگ رہے تھے کہ میرا خاندان ختم ہو جائے گا, میرا ازواجی رشتہ ختم ہو جائے گا, میرا شوہر میری بیوی مجھے چھوڑ دے گی, لیکن وہ آپ کے ساتھ ہے. خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان بہنوں کو دیکھیں جن کے شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جس کا شوہر نہیں ہے. شکر گزاری کیا کرے جب دیکھتے کہ خدا نے آپ کو شوہر دیا ہے, خدا نے بیوی دی ہے, خدا نے بچے دیے ہیں. جن کی بیویوں کی ڈیتھ ہو گئی ان بھائیوں سے پوچھیں کہ کیسے انہیں یاد آتی ہے. خدا نے جو رشتے دیے ہیں ان رشتوں کی یاد رکھا کریں, قدر کیا کریں. اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کیا کریں. لڑائی جھگڑا فساد مت کریں, شکر کریں کہ خدا تو نے مجھے بیوی دی ہے, تو نے مجھے شوہر دیا ہے, تو نے مجھے بچے دیے ہیں. جیسے بھی ہیں خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. کیسے کورونا کے دنوں میں کئی لوگ سیریس ہو گئے, 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے, کئی ہمیں سے بھی سیریس ہوئے. لیکن کیسے آپ خدا کے گھر میں ہیں. خدا نے آپ کو زندگی جیسی برکت دی ہے, خدا نے آپ کو سانسوں جیسی برکت دی ہے. شکر گزاری کرنی چاہیے. کئی لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. ہمیں یاد کرنا چاہیے کسی ٹائم ہی لسوڑے نال بھی روٹی کھاندے رہے ہیں. وہ سالنا ریڑھ کے کریے ادھر کریے ادھر. یاد کرنا چاہیے نا, ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کئی باری دوری چاہیے لون مرچ جی چکوٹی تھی, تھوڑا دودھ پا کے روٹی کھا چڑھتے. نہیں بھولنا چاہیے. میں کبھی نہیں بھولتا. میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جب ہم پنڈی میں آئے تھے, ایک کمرہ تھا, 2 ٹوٹیریاں 4 پہ, ایک کیسے دی ایک کیسے دی, وہ بھی سدیا نہیں سا. میں امریکہ میں بھی بہت میں نے بتایا, کبھی خدا کو مت بولے کہ خدا نے آپ کو کہاں سے اٹھایا ہے اور کہاں پہنچا دیا. ہم بچپن ہی سے لینڈ لارڈ نہیں تھے, ہمارے ماں باپ لینڈ لارڈ نہیں تھے. ہم تو شاید ہمارے ماں باپ, میں نے بتایا کہ شاید قبروں پر جاتے, مزاروں پر جاتے, مردار کھاتے. کہاں سے ہم خدا کے لوگ بن گئے ہیں. ہم شروع ہی سے گاڑیوں پر شاید نہیں چلتے تھے. میں نے خود 10 سال گاڑی چلائی ہے, کہیں پیدل تک کے کھاندے رہے ہیں. یاد کرنا چاہیے کہ میں کیا تھا اور کہاں تک پہنچایا ہے. کبھی میں سمجھے کہ اب یہ ہے تو میں پچھلا کبھی مت بولے. لوگ پچھلا بتاتے نہیں ہیں, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. بتایا کریں کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے. شاید ہمارے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں تھی, خدا نے کیسے کوے بھیج دیے, خدا نے کیسے بندے بھیج دیے. وہ میرے گھر میں روٹی بھی لے آئے, وہ میرے گھر میں سب کچھ لے آئے. میں بالکل بیکار تھا, ہمارا خاندان کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا, لیکن خدا نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے. یاد کیا کریں, ہم بنیادی افسر نہیں تھے, خدا نے ہمیں افسر بنا دیا ہے. ہم رد کیے ہوئے تھے, آج ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آج ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں. آج ہم عثمان کے بادشاہ کے وارث ہیں, اور خدا باپ ہمارا باپ ہے, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے, اس نے ہمیں اپنا پاک روح دیا ہے, اس نے ہمیں اپنے کلام کی برکت دی ہے, اس نے ہمیں روحانی برکات دی ہے, وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے, اس نے ہمیں خاندانی چیزیں دی ہے. اور پھر یہ اس وقت یہ یاد کرتے اور پھر یہ زبور گاتے تھے اور کہتے تھے کہ سیونی یہوہ نے لے آندے جج چھڑا, کہ سیونی یہوہ نے تاد ساڈا حال سی جویں سو کوئی وے دا, تاد ساڈا حال سی منہ ساڈے پر گئے ہاسے تیرا گانا لتا, منہ ساڈے پر
गैर कमावे चर्चा से। आमीन आमीन आमीन। और फिर ये ज़बूर 126 उस वक्त ये लिखा गया। याद करते हैं कि खुदा ने ही ख्वाब ही बेने सा। We just only visualize, हमें तो आइडिया ही नहीं था कि खुदा हम तो ख्वाब रह गया था कि हम अपने मुल्क में जाएंगे, हम हैकल बनाएंगे, हम अपने खेतों में जाएंगे, हम अपने घरों को बात करेंगे, हम फिर से अपने घर तमीर करेंगे। बाइबल में एक ख्वाब ही उनका रह गया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गई वो ख्वाब, वो बीज जो हमने देखे थे वो खुदा पूरे कर रहा है। वो ड्रीम, वो ख्वाब, वो बीज जो रोना मेरी बहनों मेरी बेटियों जो आपने रोया है खानदानी हालात की वजह से, मुश्किल हालात की वजह से, दिस इज द टाइम, सीड टाइम इज द हार्वेस्ट टाइम। हालेलुया, सीड टाइम इज द हार्वेस्ट टाइम। बीज बोना और दिस इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट टाइम। अब उसकी फसल काटेंगे। जो रोते रहे हैं, जो बीज बोते रहे, अब उसकी फसल काटेंगे। बनी इसराइल के साथ यही हो रहा था। उम्मीद नहीं थी हम वापस जाएंगे, कैसे खुदा ने पासा पलट दिया। जस्ट ओनली बिग गवर्नमेंट बट ओनली वन नाइट। खुदा का के चंद घंटों में हो गई जो गवर्नमेंट। क्या खुदा है, कैसे जो बीज आप दुआ करते रहते हैं, जो बीज आप दुआ में कराते रहते हैं, जो आपके आंसू छत के कारपेट पर गिरते हैं, जो आंसू के साथ दुआ किया करें, बीज बोया करें, इनकी बड़ी कदर है खुदा की निगाह में। ये बड़ी प्रेशियस है, ये कीमती पत्थरों से ज्यादा ये कीमती है। इसलिए आंसू के साथ खुदा के साथ दुआ किया करें। और फिर वो प्रेज करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं। तू खुदा हमें तूने छड़ा लिया है, तूने हमें रहाई दी है, तूने हमें छुटकारा दिया है। ये ज़बूर याद करते हम खुदा कहां पर थे, हम कैदी थे, हम गुलाम थे, आजादी नहीं थी, लेकिन तेरे शुक्रगुजार है कि तू हमें वापस ले आया है। वो सारा कुछ वहां पर उन्हें ख्वाब लगता था, वो सारा कुछ उन्हें वहां पर ड्रीम लगता था, और यही सोचते थे हम कभी वापस नहीं जाएंगे। शायद मैं कभी मां ना बन सकूं, शायद मेरे घर के हालात कभी ठीक ना हो सके, शायद मेरा बेटा ठीक ना हो सके, शायद मेरी बेटी ठीक ना हो सके, शायद मेरा शोहर ठीक ना हो सके, शायद मेरी बीवी ठीक ना हो सके। हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में कुदरत है, उन आंसुओं में कुदरत है। जो कलाम बोया जाता है, जो बीज आंसू की सूरत में बोया जाता है, वो फल लेकर आता है, वो बोरियां लेकर आता है, वो खजाने लेकर आता है। जब इसको रिसीव किया जाता है, जब आंसू बहाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब खुदा की हजूरी में आंसू बहाए जाते हैं, तो वो फल लाता है। ऐसा हो नहीं सकता है। और फिर वो कहते हैं वापस आ गए हैं, खुश हैं, घरों में आ गए हैं। हमने तो सीरी का, पाकिस्तानी चर्च ने तो तंग दस्ती का कोई ऐसा सीन नहीं देखा है, ना कि हमने गैर कौमों से ऐसी कोई ज्यादा परसिक्यूशन हमारी जिंदगी पर आई है। हमने वो चीजें तो हमारे करीब नहीं। हम तो बड़े अभी पोले पोले मसीही हैं, अभी हमने सख्ती नहीं देखी है, लेकिन ये तो गुलाम बन कर गए थे और गुलामों के साथ बुरा हाल करते थे। बड़ी बुरी तरह ये कौमें कत्ल करते थे, बुरी तरह की सजाएं देते थे, बड़ी बुरी तरह की सजाएं देते थे, लेकिन ये बचकर आगे हैं। और इसलिए वो कहते हैं वे साडे पर गए हासे तेरा गाना लता मोवे साडे पर गए हासे तेरा गाना गैर को मावे चर्चा सी
جب بابل میں تھے وہ کہتے تھے گیت گاؤ، انہیں اپنے باجے باہر چھوڑ چھڑے ہیں، اتنے بھی باجے والے ہیں ٹانگ دیے تھے، ادھر آواز نہیں نکلتی تھی، باقی مشکل حالات پہ. لیکن جب اس کی مہربانی کو اب یاد کر رہے ہیں نا، جب واپس آگے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے منہوں میں اب شکر گزاری ہے، ہمارے منہوں سے اب شکر گزاری نکل رہی ہے. کوئی ہمیں شکر گزاری سے روک نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں بیج بونے سے روک نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں خدا کو سجدہ کرنے سے روک نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں ہیکل بنانے سے روک نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں یروشلم کی دیوار بنانے سے روک. ہم خوش ہیں، ہم شادمان ہیں، خدا نے ہمیں رہائی دی ہے، خدا نے ہمیں چھٹکارا دیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں منہ ساڈے بھر گئے ہاسے تیرا کا نال تک. یہ وہی لوگ ہیں. ایک وقت ہے نا دی بیٹریاں بجھی سن، ایک وقت ہم جمپ مار رہے ہیں، خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ گا رہے ہیں اور کہہ رہے خدا منہ ساڈے بھر گئے. ان کی ہڈیوں سے آواز آ رہی ہے، ان کے خون کے قطرے قطرے سے آواز آ رہی ہے، اور خوشی کے ساتھ ٹولیوں کی صورت میں کہہ رہے ہیں خوش ہیں، پورے خاندان خوش ہے، زمینیں آباد ہو رہی ہیں، یروشلم آباد ہو رہا ہے، ان کا ملک آباد ہو رہا ہے. اس لیے وہ شاد بیان ہے اور شکر گزاری کرتے ہیں. غیر قوما بیچے چرچا سی، چرچا تو ہو گیا نا. بابل کی حکومت کہاں پر دنیا پر، تو کہاں پر ایک ہی دن میں ہو گئی. چرچا تو ہو گیا نا کہ اسرائیل کا خدا کیسا خدا ہے، پاورفل گاڈ ہے، المائٹی گاڈ ہے، قادر مطلق خدا ہے. وہ بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے اور وہی اٹھاتا اور بناتا ہے. ثابت ہو گیا. اور یہ اس لیے خوشی سے گاتے تھے، اور جب گاتے تھے بلند آواز سے گاتے تھے، بیان کرتے تھے، غیر قوموں کے بیچ میں گواہی جاتی تھی، بتاتے تھے ہم وہاں سیری میں تھے، ہم وہاں پر گئے تھے، لیکن خدا ہمیں اسرائیل میں واپس لے آیا ہے، اپنے کھیتوں میں واپس لے آیا ہے، اپنے گھروں میں واپس لے آیا ہے. جگہ جگہ گواہی دے رہے تھے. غیر قوموں کو، بت پرست قوموں کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ پیپل آف گاڈ لوگ ہیں. اس لیے جب گواہی ہوتی ہے تو آپ کی گواہی دور دور تک پھیل جاتی ہے. جب خدا کی مہربانی کو یاد کرتے ہیں نا، کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. گھٹ وٹ کے نہیں رکھنی چاہیے. کئی تو وڈے وڈے کام ہوندے نے تے سلوکے چ پا چھڑ دینے کہ تو ہی نہ لگے. خدا کی برتوں کو شیئر کیا کریں، بتایا کریں خدا نے مجھے گھر دیا ہے، خدا نے مجھے گاڑی دی ہے. اتنی دیر سے 35 سال ہو گئے ہیں، بیاہ نہیں ہو گیا تو بیاہ ہو گیا تو خدا دی شکر گزاری ہے. شکر گزاری ہے نا. شادیاں ہو رہی ہیں، شکر گزاری ہے. پتہ نہیں ماں باپ کتنے اس کو کیا ہماری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں، ساڈے منڈے لی رشتہ دیکھو. آج کل یہ مسئلہ ہے کہاں رشتے آئیں، اچھے رشتے کہاں. تو اگر شادی ہو جائے تو شکر گزاری تو بنتی ہے نا. اگر آپ دادی دادا بن جائیں تو شکر گزاری تو بنتی ہے نا. اگر آپ چاچو چاچی بن رہے ہیں تو شکر گزاری تو بنتی ہے نا. ہاللیلویا. جب خدا کام کرے، جب خدا مدد کرے، بیان کرے، لوگوں میں بتائیں وہی بھوکے ساں بھائی، بتایا کرے. کدی ساڈا سال نہ رہ کے کسی دی منجی تھلے، کدی وہ دی منجی تھلے. کیسے کبھی پردے، کبھی باتھ روم ہوندے سن، میں آگے ٹاٹ جا لایا ہوندا ہے، ڈاری رہندے کہ دوجا بندہ بڑے. کتنے خدا سانو کنے سسٹم چلایا ہے. وہ خدا کی مہربانی ہے نا. کتنا خدا نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے میں اسلام آباد میں یہاں پر اسلام آباد آپ پر ویگنیں جاتی ہوتی تھی. ویگن ہم ادھر کھڑے ہیں، ویگن وہ آگے جا کے بریک میں دوڑ کے دے پیچھے. وہ یاد کرنا چاہیے خدا نے کیسے ہمیں موٹر سائیکل دے دی ہیں، سائیکلیں دے دی ہیں، گاڑیاں دے دی ہیں، اچھی دی بڑی دی. خدا کی مہربانی ہے. یاد کیا کریں. انہاں بساں نو یاد کرو. نیت اللہ خان دی بساں نو یاد کرے گا جتے ہی پھردے سا کتے خدا نے اپنی بساں دے چھڑیاں نے. اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے سروں کو واپس لا. شکر گزاری کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارے کٹھے واپس نہیں آئے تھے، قسطوں میں آئے تھے. کہے دا ابا آ گیا تو کہے دی اماں آ گئی، کہے دا یانے آ گیا تو کہے دادا آ گیا. مختلف طرح یہ کٹھے نہیں تھے آئے تھے، قسطوں میں آئے تھے.
तो अब वो कहते हैं जैसे जनूब की नदियों की तरह। इसराइल के जनूब में ये जो इलाका है ना, ये सारा साल खुश्क रहता है, बारिशें नहीं होती है। लेकिन महीने में, साल में एक मर्तबा जब इसमें बारिश होती है ना, तो खुल के बारिश होती है, खुलकर बारिश होती है। 12 महीना में से एक महीना बारिशें होती हैं, बाकी 11 महीने कुछ नहीं होता। तो फिर जब वो बारिश होती है ना, इतनी बारिश होती है कि हर तरफ पानी ही पानी होता है, हर तरफ पानी ही पानी होता है, हर तरफ जल थल पानी की, हर तरफ दरख्तों की, पौधों की, फसलों की, हर तरफ हरियाली नजर आती है, पानी नजर आता है। तो इसलिए कहते हैं खुदा जैसे जनूब की तरफ से वो पानी आता है, वैसे साथ वो प्रेज भी कर रहे हैं, साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुदा ने साडे जड़े घर दे बंदे उत्थे रह गए ना, रब्बा उन्होंने वापस लाया। अभी उनका रोना खत्म नहीं हुआ है, अभी उनकी दुआओं का पूरा जवाब नहीं आया है। अभी कुछ इसराइल में है, कुछ बाबल में है, लेकिन प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, वो ईमान ला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर हम छूट गए हैं और खुदा ने हमें खाने को दिया है तो खुदा हमारे बच्चों को भी खाने को देगा, और खुदा ने दोपहर का खाना दिया है तो खुदा रात का भी खाना देगा, और खुदा ने एक बच्चे की शादी में मदद की है तो खुदा बाकी बच्चों की शादी में भी मदद करेगा। वो देख रहे तो ईमान से देख रहे, खुदा से प्रेज एंड वर्शिप एंड रिक्वेस्ट खुदा से कर रहे हैं, खुदा की तारीफ भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। रब्बा जेडे बाकी बंदे साडे रह गए ने, और बाकी बंदे जो गुनाह में रह गए हैं, नशे में रह गए हैं, शराब में रह गए हैं, बहुत परस्ती में रह गए हैं, मेरे खानदान के लोग रह गए, अरे खुदा उनको भी निजात दे दे, उनको भी निजात दे दे, उनको भी हमेशा की जिंदगी दे दे, उनको भी अब्दी जिंदगी दे दे। वो बीज बो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। और जब ये वापस आए हैं, जब ये वापस आए हैं तो इस बात को याद रखें कि इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। कहते हैं जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, और जो रोते हुए बीज बोने चाहता है वो अपने पूरे लिए हुए शादमान लौटेगा। जब ये वापस आया ना, तो बेसिकली इनके माशी हालात खराब थे। ये दुबई तो नहीं गए ना सऊदी अरब तो ना अमेरिका, ये तो सीरी में थे। जब वापस आया ना, किसी को कोई कपड़ा है तो किसी को नहीं है, कोई गर्म कपड़ा है या नहीं है, कोई चादर बिस्तर दिए है नहीं कि नहीं है, क्योंकि ये असीरी में थे, कैदी थे। थोड़ा सा राशन के पास था, थोड़ा सा राशन के पास था, शायद कुछ दिनों का हो राशन, कुछ दिनों का राशन हो। अब ये सोचते हैं, ये राशन हम बच्चों को खिलाएं, ये बीज, ये गंदम हम बच्चों को खिलाएं, या इस बीज को हम खेतों में डाल दें। क्वेश्चन था उनके ज़हन में। बीज बच्चों को खिलाएं या बीज खेतों में ले जाएं? बीज पठानों को दे दें किस्तों की सूरत में, बीज बिजली वालों को दे दें, बीज गैस वालों को दे दें, या पारी साहब ने लिफाफे भेजे नहीं या लिफाफे कर पाए? What can we do? ये सवाल इनके ऊपर भी था कि हम बीज का क्या करें। बीज थोड़ा है, बीज थोड़ा है, बोएं या खा लें, बीज बोएं या खा लें। लेकिन फिर उनको याद आता है, फिर वो पीछे जाते हैं कि पीछे हम जो बीज आंसुओं का बोते रहे हैं, खुदा ने हमें रहाई बख्शी है। वो पीछे जाते हैं और याद आता है कि खुदा ने हमें एक दिन में रहाई दे दी थी। इसलिए डिसीजन करते हैं कि नहीं, हमने खाना नहीं है, बीज हमने खाना नहीं है, बीज हमने बोना है।
खेतों में लेकर जाना है। हम मुट्ठी पर बीज लेकर जाएंगे और वहां से झोलियां और बोरियां भर कर लाएंगे। इसलिए वो कहते हैं बीज दा चुक के ज़ख़ीरा रोंदा होया जांदा है, बीज दा चुक के ज़ख़ीरा रो फिर आंदा है, पर खुशी दे नाल बेशक पर चुक के आ, पर खुशी देना। वो बीज बो रहे हैं, मायूस नहीं है, मायूस नहीं है कि पादरी खा जाते चंदा, एल्डर खा जाते चंदा, खजानची खा जाता चंदा, इन्हें तो आशर नाम है। वो मायूस नहीं है, वो बीज के लिए मायूस नहीं है। वो विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे भी आंसू का बीज जो बाबल की नदियों पर बैठकर बोया गया था वो फलदार हुआ है। अब फिर वो देख रहे हैं कि ये बीज हमने बच्चों को नहीं खिलाना है, बीज हमने बच्चों को नहीं खिलाना है, बीज को हमने बखेरना है, बीज को हमने बखेरना है। वो देख रहे हैं कि जो बीज हम बो रहे हैं ये पैदा हो रहा है, वो बीज जो बो रहे हैं ये उग रहा है। वो देख रहे हैं कि बीज हम जो मुट्ठी में लेकर गए थे वो परियां हम ट्रैक्टर ट्रालियां भर भर कर ला रहे हैं। वो बीज बद है, मायूस नहीं है, उदास नहीं है, खुश है, शादबान है। इसलिए वो कहते हैं बीज दा चुक के ज़ख़ीरा दा होया जांदा है, बीज पर खुशी दे नाल बेशक बग के आ। हालेलुया। एक तरफ करियाने वाला नजर आ रहा है, एक तरफ खुदा का घर नजर आ रहा है। व्हाट कैन वी डू? एक तरफ किस्सों वाला नजर आ रहा है, एक तरफ ब्याह नजर आ रहा है। व्हाट कैन वी डू? बीज बोए जरा बुलंदे आइए, खा लइए, क्या करें? लेकिन नहीं, बनी इसराइल के लोग जब ये ज़बूर लिखा गया, नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास तजर्बा था, उनके पास गवाही थी। नहीं, हम देते रहे हैं, खुदा हमें देता रहा है। हम खुदा को धैर्य देते रहे, खुदा हमें देता रहा है। हम खादों की खिदमत करते रहे, खुदा हमें देता रहा। उनके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए वो कहते हैं हम बीज बोएंगे, हम खाएंगे नहीं, हम बीज बोएंगे। इस बात को याद रखें। आज आपका बीज ये है, दिस इज योर बीज, दिस इज योर सीड टाइम एंड द हार्वेस्ट टाइम। बीज बोना और फसल काटना। खुदा ने कहा था नूह से, बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। खुदा ने एक लॉ बना दिया, खुदा ने कानून बना दिया तूफान नूह के बाद कि बेशक कोई सर्दियों में बोएगा, मुश्किल हालात में बोएगा, बीमारी में बोएगा, अपनी पॉवर्टी में, गुर्बत में बोएगा। मैं ये कानून बनाता हूं, खुदा ये कह रहा, मैं ये लॉ बनाता हूं। ये लॉ जब तक जमीन कायम है, ये लॉ जब तक सूरज कायम है, ये लॉ जब तक चांद कायम है, मैं ये लॉ बनाता हूं। जो बीज बोएगा वो फसल काटेगा, जो बीज बोएगा वो फसल काटेगा, जो मेरी हजूरी में लेकर रहेगा वो जवाब पाएगा, वो बरकत पाएगा। दिस इज माई लॉ, ये मेरा कानून है। ये लिविंग ब्रांच चर्च का कानून है। दिस इज अ गॉड लॉ, ये खुदा का लॉ है। बीज बोना गर्मी में, तपश में, सुबह का भी बीज बो, दोपहर का भी बीज बो, शाम का भी बीज बो, और अपना हाथ ढिला ना होने दे। जब भी तुझे मौका मिले, गिव गिव गिव,
जब भी तुझे मौका मिले दे। और इस बात को याद रखें, टुडे, आज जो बीज है ये आप किसी चर्च के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, ये बीज आप खुदा के खेत में बो रहे हैं। आप खुदा के खेत में बैठे हैं। दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये खुदा का खेत है। ये वो खेत है जहां ना कीड़ा लगता है, ना जंग लगता है, ना चोर नकब लगाते हैं, ना डाकू डाका डालते हैं। बस औकात हम बीज गलत जगहों पर बोते हैं जो उगता नहीं है। और योएल नबी में लिखा है, पहला बाब 17 पे, और बीज ढेलों के नीचे सड़ गया। और बीज ढेलों के नीचे सड़ गया। खुदा ने जितनी भी क्रिएशन की पैदाइश की किताब में, खुदा ने कहा कि हर फलदार सब्जी और फसल अपने अंदर बीज रखे। यह खुदा का कानून है कि यह अपने अंदर बीज रखे। लेकिन यहां पर लिखा है और बीज ढेलों के नीचे सड़ गया। कईयों को बीज मिलता है, वो बीज के लिए मुट्ठी खोलते नहीं हैं, वो बखेरते नहीं हैं। जब तक आप बीज को लेकर जमीन पर बखेरेंगे नहीं, आप हार्वेस्ट काटेंगे नहीं। बखेरेंगे तो काटेंगे। सीड टाइम, हार्वेस्ट टाइम, सीड टाइम, हार्वेस्ट टाइम, बीज बोना और फसल काटना। दिस इज द लॉ ऑफ गॉड। यह खुदा का कानून है। जो बखेरता नहीं है उसको मिलता भी नहीं है, उसका बीज सड़ जाता है। जोएल में लिखा है और बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, इसलिए उनकी जमीन प्यासी है, इसलिए उनकी जमीन में बरकत नहीं है, उनके बागों में सराख है। पानी पीते हैं, प्यास नहीं बुझती है, खाते हैं, बीमारी जाती नहीं है, इलाज करा लिया है क्योंकि सुराख है। और यहां पर लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, जो बोने वाले को देता है। जो थोड़े में ध्यानदार है ना, वो ज्यादा में ध्यानदार है। अगर आप किसी को 100 रुपया देते हैं, चाहे 10 रुपए की पेप्सी लाया, उन्हें 90 रुपये आन के वापस नहीं देते थे। आप दोबारा उसको 100 रुपया नहीं देंगे। यार इन्हें तो पहले भी नहीं देते, पहले दिन सामने दसिया बोतल तो 10 दी आई है तो 90 ने किधर किधर है। वो 100 में करप्ट है। जड़ा बंदा 100 च करप्ट हुए ना, उन्हें 1000 नहीं मिलता। जो 1000 में करप्ट है ना, उसको लाख नहीं मिलता। जो लाखों में करप्ट है उसको करोड़ों नहीं मिलते। जो 100 में वफादार है उसको हजारों भी मिलते हैं, उसको लाखों भी मिलते हैं, उसको करोड़ भी मिलते हैं। दिस इज अल्लाह। ये खुदा का कानून है। और बहुत सारे लोग 100 रुपए लेके करप्ट हो जाते हैं। 500 तनखा लैके, 2000 तनखा लैके, 20,000 लैके, 15,000 लैके, ਉਹਦੇ ਚ करप्ट है। इसलिए वो बीज सड़ जाता है, परेशान है कि जरूरतें नहीं पूरी होंगी, नहीं पूरी होंगी, बिकॉज यू आर करप्ट। करप्ट बंदे के साथ खुदा नहीं है। बीज से हम खुदा को ऑनर करते हैं। और फिर यहां पर लिखा है, जब बीज बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए। जो बीज बोता है ना, लिखा है कि खुदा उसको बीज देता रहता है। जिसे बोना है ना, जो बोना चाहता है, जो यहां से बोना चाहता है, दिल से बोना चाहता है, खुदा पता नहीं कैसे उसके तकिए के नीचे रख देगा। कैसे? भाई बख्त सिंह अब वो खुदा में चले गए। बड़ा उनका एक नाम है खिदमत पे, और सुना है वो कहते हैं उनके लिए बड़े खुदा के मिरेकल्स हैं। और कहते हैं कि सुना था कि उनके वाकई ही तकिए के नीचे नए नए नोट आ जाते थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे खादम, खुदा के खादम लायल साहब, कि मक्के वो उनके तकिए के नीचे वाकई ये हकीकत है। बख्त सिंह का बहुत एक नाम है खादमों में, तो वाकई खुदा तकिए के नीचे रख देता है।
شاید اج کو سان 500 روپیہ نہیں دینا، اور ان کو خدا لے بھی جاتا تھا، ویسے ہی ان کو خدا بھائی بخت سنگھ کو لے جاتا تھا. بڑی ان کی خدمت ہے. تو خدا کن کا بیج دیتا ہے؟ جو بیج بونا چاہتے ہیں. جس نے بیج پرس سے میں ڈال لینا ہے، جا کے پتہ چلے سیور کھا آیا تو انہوں کی لبنا، ہاں پتہ چلے شنواری کھا آیا تو انہوں کی لبنا میں، یعنی کھان پین چے بیج ڈا چڑیا خدا دے گھر چ دینے تو لبنا کی ہے. انہوں بھوکاں لبنیاں نے، پریشانیاں لبنیاں نے، بیماریاں لبنیاں نے، ویرانیاں لبنیاں نے، اداسیاں لبنیاں نے، بیماریاں لبنیاں نے، اور جنیاں بھی بیماریاں نے گن لو سارے جو بھوتا نہیں ہے. لکھا ہے خدا کے کلام میں، لکھا ہے وہ تمہارے بیج وہاں پہنچائے گا، اور پھر لکھا ہے وہ اس سمے ترقی دے گا اور تمہارے راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا. ہاللیلویہ.